Hello students, how are you all? I hope you all are good at your home. Okay beta, so today we will start a new chapter in our honeycomb of class 7 and the chapter name is quality. It is 5th chapter. Okay, so we all know what is quality. Quality किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी है तो वो क्या है उसकी quality. So here in this chapter basically the story is about a man, Mr. Gessler. Okay, the story is about Mr. Gessler and he is basically a German shoemaker and he has settled in London. So in this story the author tells us that can any shoemaker can be called an artist? Is that right? क्या हम किसी भी shoemaker को एक artist बोल सकते हैं? वो simply एक shoes बना रहा है तो क्या हम उसे artist बोल सकते हैं? So he says that yes, we can call him an artist, but there is a condition that he must have that skill, good skill, plus pride and respect for that trade. For his trade, he should have respect for that trade. Then he can be called an artist. So in this story, the author says that from a very long time he used to go to this shop, Gessler Brothers. So this was the name of the shop. It was settled in London in a small street. Okay. So this shop is in London. So from very early days, since his childhood, he used to go to this shop for his boots. Okay, and this shop basically in this boots are made only when order is given. Okay, you have to place an order and then they will make the shoes. So the boots, well, the boots are of such a quality that they will definitely fit you well and they will last for a very long time because their material is very good. They are made of very good leather. Okay, so and the way they are made, they never hurt your legs. Okay, so the owner of the shop, there were basically two brothers, Mr. Gessler and his elder brother, but in starting he only the author only met Mr. Gessler. So Mr. Gessler, his appearance basically whenever he treats he meets a customer, basically he is without coat, he is not wearing any coat, he is simply in a leather apron and his posture is a little bent and his sleeves are turned back, so he was ready to work. Okay, that was his appearance and he loved his trade, he worshipped his trade. बहुत ज़्यादा respect उनके मन में अपने trade के लिए, अपने shoe making के लिए. Okay, so this is the basic introduction of the chapter. So now some incidents happen in this chapter and we will come to them one by one. First incident is when the author placed an order of Russian leather boots. Okay, the author went there and he placed an order to make Russian leather boots. So Mr. Gessler comes in the same appearance and then he gets some leather, raw material. As a raw material he gets some leather to show him that is that okay, the color is right or not. So to show him he brings some leather. And when the author was read, when the author loved that leather and asked him that when he will prepare the boots, so he simply says that he will prepare the boots quite soon, only tomorrow fortnight. Okay, he will prepare them quite soon. And while he was making all these exchanges, this communication, his eyes were completely fixed on that leather, on that piece of leather that he was showing to the author, and he was completely lost in thoughts of the boots. Now second is complaint. Now second incident is the author says that he got only one chance in his life that he made a complaint to Mr. Gessler, and he said that the boots he purchased from him some time back, they actually creaked. Creak मतलब थोड़ी आवाज़ सी करना. Okay, so when Mr. Gessler heard this thing that the boots were not good, so he could not believe this thing. He was just not ready to believe that thing, and he said that the author must have got them wet. ज़रूर author ने उन जूतों को गीला कर लिया होगा. कोई उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जूते बनाए हुए जूते खराब हो सकते हैं. So, but the author said that he has not done any such thing, and finally Mr. Gessler thought for some time, and he said that okay, he will check those boots. अब उनको देखेगा, उनमें कोई कुछ ठीक हो सकता है तो उसे रिपेयर करेगा, और अगर वो रिपेयर नहीं होते, अगर वो उससे रिपेयर नहीं होते तो वो बेसिकली उसका जो मनी उसने लिया था वो वापस उसे रिपेयर कर देगा, वापस दे देगा उसके पैसे. ठीक है. So जब ये मिस्टर गेस्लर ऐसी बात करता है, so author felt really bad for Mr. Gessler and he felt
regretful that why he even brought this topic. उसे शायद ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था. So now third incident is when Boots purchased somewhere else. Basically in this incident the author, he was in a hurry and he purchased a pair of boots from somewhere else, from a big firm, बड़ी सी shop, okay, branded shop से उसने कहीं से shoes खरीद लिए. So उसने वही शूज़ पहने हुए थे और वो मिस्टर गेस्लर की शॉप पर गया नए शूज़ ऑर्डर करने के लिए. सो जब मिस्टर गेस्लर आए, उन्होंने बेसिकली ऑथर को देखा और उन्होंने उससे ऑर्डर लिया बिना लेदर दिखाई. उन्होंने सिंपली ऑर्डर लिया और उनकी जो नजरें थी वो सिंपली ऑथर के बूट्स पे थी. वो ऑथर के बूट्स को पहचान गए क्योंकि कि वो उनकी शॉप के नहीं है. मिस्टर गेस्लर क्विकली रिकॉग्नाइज दिस थिंग कि दीज बूट्स आर नॉट ब्रॉट फ्रॉम हिम. सो उन्होंने ये बात बोली ऑथर को एंड ही पॉइंटेड टू द लेफ्ट बूट. उन्होंने लेफ्ट बूट की तरफ एक पॉइंट जगह पे पॉइंट किया कि यहाँ पर तुम्हें ये चुभ रहे हैं, यहाँ पर तुम्हें ये प्रॉब्लम कर रहे हैं. सो एट दैट टाइम मिस्टर गेस्लर को पता है दैट द बूट्स आर नॉट बॉट फ्रॉम हिज शॉप, बट इवन देन he was not angry, he was not feeling sorrow, and he was not also feeling contempt. Contempt means disrespect for the other firms. Okay, he was simply looking at those shoes, but there was an expression on his face जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑथर को बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना खून जम जाए, बस ऐसा सा फील उसे हो रहा था. So that was the all experience. उन्होंने मतलब he was such an expert in making boots that he simply looked at the author's boots and he pointed out that you are facing problem in this part of the boot. Now and at that time he talked about the conditions of his trade, hardships of his trade. वो पहला टाइम था जब उसने ऑथर से अपने काम के प्रति जो उसकी कंडीशंस हैं, जो मुश्किलें हैं उस काम में, वो सारी उन्होंने बात करनी शुरू की ऑथर से. और उन्होंने कहा कि he simply hate these big firms. Why? Because these firms basically how they will get customers by advertisement. ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, ना कि उनके अच्छे काम के लिए, ना कि उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए. दूसरा, ये जो छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस है इनको कम्प्लीटली रूइन कर देते हैं क्योंकि लोग ब्रांडेड शॉप में जाने लगते हैं और इनके पास नहीं आते. सो एट दैट टाइम ऑथर रियली फेल्ट बैड, ही फेल्ट गिल्टी दैट व्हाई ही हैज परचेज्ड दोस शूज. ओके, और उसने अपनी सिचुएशन समझाई दैट ही वाज क्वाइट इन अ हरी एंड ही नीडेड टू परचेज देम ऑल दिस थिंग्स. बट वो इतना गिल्टी फील कर रहा था कि उसने फटाफट और बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर किए और उसने इतने सारे ऑर्डर्स कर दिए, इतने सारे जूते बनाने के लिए ऑर्डर कर दिए कि वो शूज़ बहुत लंबे टाइम तक चले. ओके, और वो अभी तक के और भी सबसे ज़्यादा अच्छे शूज़ में से थे और वो इतने सारे पेयर्स थे और इतने लंबे टाइम के लिए चले कि वो अगले 2 साल तक उस शॉप पर नहीं जा सका. सो आफ्टर 2 years he went again to the same shop, Mr. Gessler's shop, and when he went there he saw a man and he thought that he was his elder brother. Okay, he got confused, Mr. Gessler, to his elder brother, so he thought that the person he was meeting to was Mr. Gessler's elder brother. उसे लगता है कि वो Mr. Gessler का बड़ा भाई है. So जब जो वो मिस्टर गेस्लर है, जब वो पास में आते हैं और वो उन्हें विश करता है तो वो कहते हैं कि मेरा भाई तो मर चुका है, my elder brother is dead. So the author was quite shocked to see that it was actually Mr. Gessler and not his elder brother. And Mr. Gessler touched the top of his head. Okay, he touched the top of his head where his thin where his hair has gone quite thin. उनके बाल बहुत कम थे टॉप पे और वो बहुत एज लग रहे थे, बूढ़े से लग रहे थे. उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो पेल लग रहा था जैसे कोई बीमारी हो और वो बहुत टायर्ड भी लग रहे थे. So basically the author found out that his elder brother was dead now. So उस टाइम पे फिर जो ऑथर है वो बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर करता है और इस बार जो वो बूट्स हैं वो आने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, बट जब आते हैं तो अभी तक के वो सबसे बेहतरीन शूज थे. आफ्टर दैट दी ऑथर वेंट अब्रॉड, वो बाहर चला जाता है और लगभग 1 साल के बाद वापस लंदन आता है और जो फर्स्ट शॉप दैट ही विजिटेड आफ्टर हिज रिटर्निंग बैक, जो पहली शॉप जिसमें वो जाता है वो होती है मिस्टर गेस्लर की शॉप, गेस्लर ब्रदर्स. ओके, और जब वो वहां पे जाता है तो मिस्टर गेस्लर जो है, जो कि जब वो गया था तो वो 60 इयर्स के थे, बट जब वो आया तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो 75 इयर्स के हुए हैं. मीन्स उनके कॉम्प्लेक्शन में, उनकी अपीयरेंस में इतना ज्यादा चेंज आ गया कि वो 60 साल के होने के बावजूद 75 इयर्स के लग रहे थे.
और बहुत ज़्यादा थके हुए थे और अपने काम में बहुत ज़्यादा थके हुए थे, और जो उनकी याददाश्त थी, उनकी जो मेमोरी थी, मे बी वो भी थोड़ी कम होने लग गई क्योंकि वो ऑथर को पहचान नहीं पाए। ही कंप्लीटली फेल्ड टू रिकॉग्नाइज दी ऑथर। और तब जो ऑथर है उसने बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर किए और इस बार वो बहुत ज़्यादा लेट आए। लगभग ऑथर समझ चुका था कि मे बी इस बार वो आएंगे ही नहीं, बट तभी वो शूज़ आ जाते हैं और आज तक के वो सबसे बेहतरीन शूज़ थे। बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग थी, बेस्ट क्वालिटी थी, बहुत गुड लुकिंग लेदर था, सब कुछ बेस्ट था। और उसने फटाफट, जो ऑथर है, ही वेंट डाउनस्टेयर्स एंड रोट अ चेक एंड सेंड इट टू हिम। फटाफट वो अपने हाथ से एक चेक लिख के मिस्टर गेस्लर के पास भेज देता है और लगभग 1 वीक के बाद वो वापस मिस्टर गेस्लर की शॉप पे जाता है। सो उनकी शॉप के पास से गुजर रहा था, सो ही थॉट दैट व्हाई नॉट चेक हिम आउट एंड थैंक हिम फॉर दोज शूज। मिस्टर क्यों ना उनको बधाई दूं कि इतने ज़्यादा बेहतरीन शूज़ थे और उनका शुक्रिया अदा करूं। तो वो जाता है 1 वीक लेटर और जब वो वहाँ जाता है तो व्हाट ही सॉ दैट द शॉप इज गॉन नाउ। देयर वाज नो साइन ऑफ द बोर्ड गेस्लर ब्रदर्स। अब वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लिखा था जिसपे गेस्लर ब्रदर्स लिखा हो, वो शॉप भी नहीं थी, बल्कि वहाँ पर एक नई शॉप थी जिसके अंदर एक इंग्लिशमैन मीन्स अ ब्रिटिशर वाज सिटिंग देयर। और वो जो इंग्लिशमैन है वो उसे बताता है कि उन्होंने वो शॉप ले ली है, अब उन्होंने वो शॉप ओन कर ली है। तो बेसिकली जो पूछता है कि ठीक है बट वेयर इज मिस्टर गेस्लर, जब व्हेन वी आस्क्ड हिम दैट वेयर इज मिस्टर गेस्लर, सो द इंग्लिशमैन टोल्ड हिम दैट मिस्टर गेस्लर एक्चुअली डाइड, ही वाज डेड नाउ एंड व्हाई ही डाइड, बिकॉज ऑफ हंगर। बिकॉज ऑफ हंगर, भूख की वजह से वो मर गए। धीरे धीरे स्टार्वेशन था, धीरे धीरे भूख की वजह से, मतलब why this cause of died of hunger when he was such a good shoemaker, he has such a good shop. So reason क्या था? वो इंग्लिशमैन कहता है कि मे बी ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज उन्होंने कभी किसी और को हायर नहीं किया, किसी और इंसान को हायर नहीं किया ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। वो हमेशा अपने बूट्स को खुद ही बनाते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। इस वजह से ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि वो अकेले थे शूज़ बनाने के लिए, सो ज़्यादा टाइम लगता था शूज़ को डिलीवर करने के लिए। और जो लोग हैं वो इतना वेट नहीं कर सकते, दे कुड नॉट वेट सो लॉन्ग एंड दैट्स व्हाई कस्टमर्स हैं वो आने कम होते गए। और फाइनली उन्होंने अपना पूरा वर्क जो है, जो भी अपनी कस्टमर से उनको खो दिया। और प्लस वो इतने बेहतरीन शू मेकर थे बट ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, कैसे लोगों को पता चलेगा। और वो अपने काम में, क्योंकि वो अकेले थे जो काम करते रहते थे, तो उनके पास खाने के लिए टाइम नहीं था और जो जितना मनी वो कमाते थे वो सारा रेंट और लेदर में चला जाता था। सो दीज आर द रीजंस मे बी ही डाइड एंड ही एडमिटेड दैट उन्हें देखा था, जो ये ऑनर है इंग्लिशमैन, इन्होंने भी मिस्टर गेस्लर को देखा था एंड ही सेज दैट डेफिनेटली मिस्टर गेस्लर इज द बेस्ट शू मेकर। वो अपने काम में लगे रहते थे और उन जैसे शूज कोई भी नहीं बनाता था एंड सो द ऑथर आल्सो एग्रीड विद हिम दैट ही वाज डेफिनेटली द बेस्ट शू मेकर। सो वी कैन से दैट a shoemaker can be an artist when he has such a passion for his profession. When a person respects and take pride in his profession, then he can be called an artist. So thank you beta, I hope you all understand this chapter. Okay beta.